हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। वेलकम 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 टू आवर चैनल मैथ फंडामेटिक्स। तो आज गाइस करेंगे हम रियल नंबर्स की प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी और कुछ बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बच्चों, लेट अस स्टार्ट गाइस। तो हम लेते हैं पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। तो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 says express each number as a product of its prime factors. तो पहला पार्ट इसका लेते हैं बच्चों। We have to express 140 as a product of prime factors. तो 140 को बच्चों पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। 140 it will go by 2, then 7 ja 14, then 0 2 3 ja 6, 2 5 ja 10, 5 7 ja 35, 7 1 ja 7। तो 140 we can write बच्चों 2 into 2 into 5 into 7। तो 2 raised power 2 into 5 into 7। यहां पर नंबर दो बार आया तो इसको 2 रेज पावर 2 लिख दिया। ठीक है बच्चों, लेट अस टेक नेक्स्ट पार्ट 4। इट सेज वी हैव टू एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, द नंबर इज 5005। ओके गाइस, चलिए लेट अस टेक 5005। 5005 it will go by 5, 5 1 ja 5, 0 0, 5 1 ja 5। then now it will go by 3, it will not go because last digit is 1, so either 3 7 9 that type of number it will go। so let us try 7 7 1 ja 7, 7 4 ja 40 28, then 21, 7 3 ja 21। then it will go by 11 11 1 ja 11, 11 3 ja 13, 13 is prime number again, then 13 1 ja 13। so we can write 5005 as 5 into 7 into 11 into 13। this is the answer। okay guys, okay, then let us go to question number 2। it says find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF is equal to product of two numbers। okay guys, let us take second part, question number 2। second part says we have to find LCM and SCF of 510 and 92 numbers given is what we have to do, we have to find out FCF and LCM of 510 and 92। okay guys, so let us first factorize 510। okay, we will write 510, it will go by 2 2 5 5, then it will go by 3 3 8 are 24, 3 5 are 15, then it will go by 5 5 1 are 5, 5 5 are 25, 5 7 are 35, then 17 is a prime number, it will go by 17 1। so we can write बच्चों 510 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3 into 5 into 17। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट नंबर गिवन इज 92। 92 को देखते हैं कैसे फैक्टराइज होगा। 92 विल बी 2 2 4 जा 48, 2 4 जा 8, then 2 6 जा 12। okay, then 2 23, again 23 is a prime number, 23 1 जा 23,
92 can be written as, guys, 2 into 23. ओके बच्चों, चलिए अभी हमें निकालना है HCF एंड LCM. तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. लेट अस सी इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 एंड 92 व्हाट आर द कॉमन थिंग्स. देखो बच्चों, दिस 92 we can write 2 raised power 2 into 23. ओके, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है. 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, बाकी और कोई कॉमन नंबर नहीं है इसमें. सो HCF विल बी व्हाट? HCF विल बी 2. ओके गाइस, चलिए अब LCM विल बी व्हाट? LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो इसमें जितने भी नंबर हैं जो जो कॉमन है उन सबको ले लेते हैं और उनका जो हाईएस्ट पावर होगा वो लिखा जाएगा. तो LCM में देखते हैं 2 की पावर यहां पर कितनी है? 2 की पावर 2 है, तो ये आ जाएगा 2 रेज पावर 2. ओके, देन 2 raised power 2. Then let us see what are the other numbers. Other number is 3. 3 here in 510 3 is there, but in 92 3 is not there. So we will write 3 also. 3 into 5 into 17 into 23. ठीक है guys, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 is 4. 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. 60 into 17 into 23, ये आ जाएगा बच्चों 23,460. So this is the answer. LCM is 23,460 and HCF is 2. So this is the answer HCF and this is the LCM. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अच्छा, अब इसमें एक चीज और दी हुई है बच्चों. वी हैव टू वेरीफाई that HCF into LCM is equal to the product of 2 numbers. तो बच्चों ये देखते हैं यहां पर HCF आया हमारा 2. HCF into LCM, this should be equal to 510 into 92. तो HCF कितना था? 2. LCM कितना आया हमारा? 23,460 और ये आ गया 510 into 92. तो 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 and 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46,920. Let us multiply 92 and 51. 92 and 51, ये इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 510 और 92 कितना आता है? 1 2 जा 2, 1 9 9, then 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 and 1 is 46. ये आ गया 46920. So 592 is equal to the product of 2 numbers. ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं. Let us take next question. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं गाइस. लेट अस टेक सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या है? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड आउट HCF एंड LCM ऑफ 17, 23 एंड 29. ठीक है बच्चों, अब आप यदि देखो 17 एंड 23 एंड 29, इनके आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते क्योंकि ये तीनों के तीनों ही प्राइम नंबर है. तो इसको प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? 17 वी कैन राइट 1 into 17 एंड 23 वी कैन राइट 1 into 23 एंड 29 वी कैन राइट एज 1 into 29. ओके बच्चों, सो अब इसमें HCF क्या होगा? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. ठीक है बच्चों, तो HCF देखते हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या है.
वन इज एयर, वन इज एयर, वन इज एयर, ओनली वन इज दी कॉमन फैक्टर, तो HCF क्या आ गया इसका, 1 आ गया, क्योंकि 17 यहां ऊपर में है, बीच में नहीं है, नीचे नहीं है। सिमिलरली 23 ऊपर नहीं है, बीच में है, नीचे नहीं है। 29 ऊपर नहीं है, बीच में नहीं है और नीचे है, तो HCF क्या आ गया, 1। चलिए अब LCM देखते हैं। LCM में क्या क्या नंबर्स हैं, 1 इज एयर, 1 इज एयर, 1 इज एयर, तो 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, ये LCM आ जाएगा। दिस विल बी 11,339। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट, तो HCF हो गया 1 और LCM हो गया 11,339। Okay guys, Question number 4 says, given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, then we have to find LCM of 306 and 657. This we know, HCF into LCM for A and B, you know HCF into LCM is equal to A into B. तो ये फार्मूला बच्चों हमें यूज़ करना है। तो यहाँ A और B क्या है, A इज़ 306 and B is 657. HCF is given, LCM निकालना है। तो बाई दिस फार्मूला 9 इंटू LCM is equal to 306 इंटू 657। ठीक है बच्चों, तो LCM विल बी इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है बच्चों, अब इसको यदि काटेंगे 9 को, तो ये आ जाएगा 9 3 जा 27 and 9 4 जा 36. So this will be 657 into 34. तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 22223338. तो दिस विल बी दी आंसर, दिस इज दी आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 रेज़ पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों हमने फर्स्ट रियल नंबर की जो वीडियो थी उसमें ये हमने किया हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, they are composite numbers, they are composite numbers। ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों गाइज यू नो, वो एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को लेते हुए हमें ये क्वेश्चन हल करने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट वी टेक फर्स्ट नंबर 7 into 11 into 13 plus 13। इसको बच्चों हम ये देखते हैं 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वी कैन टेक कॉमन। 13 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, अंदर बचेगा 7 into 11 into 1 plus 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 11 जा 77, 77 1 जा 77 प्लस 1 इज 78, 13 into 78। ठीक है बच्चों, तो 13 into 78 को मैं फिर दोबारा 78 को यदि फैक्टराइज करूँगा तो आप जानते हो 13 into 6 इज 78। आई कैन राइट 13 into 6, और 6 को आई कैन राइट 2 into 3।
तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है गाइस, आई कैन राइट इट एज 13 रेज पावर 2 इंटू 2 इंटू 3। चलिए आगे लेते हैं। नेक्स्ट नंबर गिवन इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो बच्चों आप यदि इसको ध्यान से देखें तो 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ। तो 5 यदि मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये आ गया बच्चों मेरे पास में। यदि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू 7 6 42, 4 3 12 इंटू 2 इज 24, 1 है 21। तो ये हो गया बच्चों 42 इंटू 24 इंटू 1 इज प्लस 1। तो ये हो जाएगा 42 इंटू 24 को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1008 प्लस 1। तो क्या बच गया मेरे पास में, मेरे पास आ गया 5 इंटू 1009। तो बच्चों यदि आप ध्यान से देखो, पहला नंबर दिया हुआ था, ये क्या है 13 रेज पावर 2 इंटू 2 इंटू 3, कंपोजिट नंबर था। बट ये तीनों 13 इज प्राइम नंबर, 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर, हेयर 5 इज प्राइम नंबर एंड 1009 दिस इज आल्सो प्राइम नंबर। ये बच्चों ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर इज 1009। तो that is how we have explained that these two numbers are the composite numbers because they can be expressed as the product of prime numbers. 1009 is smallest 4 digit prime number. This is smallest 4 digit prime number. ठीक है, और लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, 9973 is the largest 4 digit prime number. This is the largest 4 digit prime number. 4 digit prime number. This is the largest 4 digit prime number. This is 4 digit prime number. ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 says, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive and round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि सोनिया 18 मिनट लेती है एक फील्ड को, राउंड फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है, उसको चक्कर मारने में, और रवि उसको 12 मिनट लेता है। अब वो कह रहा है सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point. तो बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा ध्यान रखना कि कोई ना कोई फार्मूला जरूर लगेगा, बट ये देखना पड़ेगा हमें कौन सा फार्मूला सही बैठेगा। अब इसमें यदि ध्यान से देखो, आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, तो वो ये कह रहा है कि रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक जना कम स्पीड से चल रहा है, दूसरा जो है वो तेज स्पीड से चल रहा है। तो बच्चों ये एक आपकी सर्कुलर फील्ड है, इसमें से जो फर्स्ट तेज स्पीड से चल रहा है वो तो जल्दी आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, और जो धीरे कम स्पीड से चल रहा है वो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब नाउ क्वेश्चन सेज कि यदि ये दोनों एक ही पॉइंट से और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट में, जैसे P इज़ दी स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितनी देर में वो पहुंचेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए, क्योंकि एक जो स्लो स्पीड से चल रहा है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है,
तो हो सकता है वो एक राउंड के बाद पहुँचें या 2 राउंड के बाद पहुँचे। एक राउंड के बाद तो वो नहीं पहुँचेंगे, वो 2-3 राउंड के बाद ही पहुँचेंगे। तो इनको टाइम लगने वाला है, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्योंकि एचसीएफ जो है हमेशा, एचसीएफ मैंने अपने लास्ट ट्रिक्स वाले वीडियो में बताया था कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, और एलसीएम जो होता है जो लार्जेस्ट नंबर होता है उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगने के लिए हमें जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा इसको कितना टाइम लगेगा। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 is the correct answer. So what we have to do? We have to find out LCM of 12 and 18. ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं 12 and 18 का LCM निकालना है। 12 and 18 का LCM निकालना है। तो 12 and 18 का LCM निकालने के लिए हमें ये आएगा 2, 6, 2, 9, then 2, 3 जा 6, then 9 as it is, then 3, 3 1 जा 3, 3 जा 3, then 3, 1 जा 3, 1 जा 3. So LCM will be 2 into 2 into 3 into 3. This is 2 raised power 2 into 3 raised power 3. This is 4 into 9. This is 36. So answer is 36 minutes. This is the answer. After 13 minutes of starting from the same point, they will meet at the same point. ठीक है guys, let us come to exercise 1.2. Question number 1 says prove that root 5 is irrational. इस टाइप का क्वेश्चन गाइस हमने लास्ट वीडियो में किया है, जिसमें रूट 3 इज इरेशनल, ये हमने प्रूव किया था। तो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज दैट वी हैव टू प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों, जैसे लास्ट रूट 3 में हमने एजम्पशन लिया था, जो भी हमें प्रूव करना है उसके अपोजिट हमें एजम्पशन लेना है। तो हम इसमें एज्यूम करेंगे, let us assume that 3 + 2 रूट 5 is rational number. Means 3 + 2 रूट 5 is of the form of a upon b, where a and b are co-prime positive integers. b is not equal to 0. a and b are co-prime positive integers. Okay guys, चलिए then let us see 3 + 2 रूट 5 is equal to a by b, एंड 3 को हम दूसरी साइड में ले जाते हैं इधर, तो आई विल हैव 2 रूट 5 इज इक्वल टू a upon b -3. दिस इज इक्वल टू a -3b अपॉन b. ठीक है बच्चों, तो रूट 5 इज इक्वल टू a -3b अपॉन, इस 2 को मैं नीचे ले जाता हूं इधर, तो दिस विल बी 2b. तो इससे क्या प्रूव होता है बच्चों, रूट 5 इज इक्वल टू a -3b अपॉन 2b. दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रेशनल. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स दिस गिव्स मी रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. This gives root 5 is a rational number. But this contradicts the fact that root 5 तो कभी rational होता ही नहीं है. Root 5 is always irrational number because it is in the square root form. This contradicts
the fact that root 5 is irrational number. Because all numbers in square root are irrational. So our assumption is not correct. जो हमने assumption लेके चले थे वो assumption सही नहीं है, वो गलत है. That means this gives root 5 3 plus 2 root 5 is a irrational number. ओके बच्चों, चलिए समझ में आ गया होगा उम्मीद है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 1/√2 एक लेके देख लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1. We have to prove that 1/√2 is an irrational. So इसमें भी हम वही assume कर लेंगे, अपोजिट ले लेंगे. Let us assuming that 1/√2 is a rational number. That means 1/√2 is equal to a upon b. Squaring on both the sides, this gives me 1/√2 square is equal to a upon b square. This gives 1/2 is equal to a square upon b square. This gives me b square 2a square is equal to b square. That means इसका मतलब यह हुआ बच्चों 2 divides b. 2 divides b. 2 divides b square. और उस थ्योरम से हमें पता है कि यदि स्क्वायर को डिवाइड करता है कोई नंबर तो वो उसको सिंपल उसको भी डिवाइड करेगा. 2 divides b square. This gives 2 also divides b. ओके, दैट मीन्स यदि 2b को डिवाइड करता है तो इसका मतलब यह हो गया आई कैन राइट b इज इक्वल टू 2c. अभी मैं स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ तो आई विल गेट b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग. ठीक है बच्चों, तो बट यहां से 2a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर है और यहां पर b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर है. तो बाय दीज टू what I get, this gives me, this is say 1 and say this is 2 by 1 and 2 what I get 2a square is equal to 4c square. This means a square is equal to 2c square. I can write it like this, 2c square is equal to a square. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, 2c square is equal to a square. That means I can write it like this, c square is equal to a square by 2. इसका मतलब ये हो गया 2 divides a square, 2 divides a square. By that theorem 2 also divides
डिवाइड्स ए। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां हमने देखा 2 डिवाइड्स ए एंड 2 डिवाइड्स बी, 2 डिवाइड्स बी एंड 2 डिवाइड्स ए। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, ये दोनों को ही डिवाइड करता है, दो जो है दोनों को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हम एजम्पशन लेके चले थे कि 1/√2 इज a अपॉन b, वेयर a एंड b आर दी को प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, सो हमारी एजम्पशन गलत हो गई। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स this contradicts our assumption। ठीक है बच्चों, तो दैट मीन्स 1/√2 जो हम एजम्पशन लेकर चले थे कि 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, वो एजम्पशन हमारी गलत है। इसका मतलब ये हो गया, सो 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। ओके बच्चों, चलिए ये तो हो गई एक्सरसाइज 1 और 2 के बारे में। चलिए लेट अस टेक सम बोर्ड क्वेश्चंस, कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस लेकर चलते हैं, देखते हैं सम बोर्ड क्वेश्चंस। बोर्ड क्वेश्चंस ये दिया हुआ है, दिस वाज आस्क्ड इन 2025 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन इज, इफ HCF ऑफ 98 एंड 28 इज इक्वल टू M, LCM ऑफ 98 28 इज N, then value of N minus 7M is what? A is given as 0, B is given as 28, C is given as 98 and D is given as 198. So let us see how we have to solve this question. तो पहले M दे रखा है HCF है और N दिया हुआ है LCM है और हमें N minus 7M का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों इसके लिए वी नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ N एंड M, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N minus 7M। ठीक है बच्चों, N minus 7M की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए HCF कैसे निकालेंगे, 90, इसको पहले 98 और 28 को फैक्टराइजेशन कर देते हैं। लेट अस राइट 98 इज इक्वल टू व्हाट, 98 को फैक्टराइज यदि करते हैं तो 249, देन 7 and 7 and 7, so 98 is equal to 2 into 7 into 7, that means 2 into 7 square। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अब देखते हैं 28 का HCF कैसे निकालेंगे। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, 2 14 2 7 7 1 7, तो 28 हो गया गाइस 2 into 2 into 7, दिस इज 2 raised power 2 into 7। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका HCF देखते हैं। HCF क्या है, M दिया हुआ है, HCF इज M, तो M क्या आ जाएगा, M विल बी HCF। HCF क्या आएगा यहां पर, HCF कॉमन फैक्टर यहां पर 2 है, यहां भी 2 है, तो लीस्ट पावर क्या है, 1 है, तो 2, और यहां पर 7 की पावर 2 है, यहां 7 की पावर 1 है, तो 2 into 7 HCF आ गया इसका, 2 into 7 is 14। ठीक है, अब N क्या LCM है, N है LCM क्या आएगा बच्चों इसका, यहां पर 7 की पावर 2, हाईएस्ट पावर 7 की 2 है,
और यहाँ ये हो गया 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर हाईएस्ट क्या है 2 है तो 2 रेस पावर 2, तो ये हो गया 49 इंटू 4, दिस इज 196। तो गाइस n-7m हमें कैलकुलेट करना है, n-7m विल बी, n इज 196 माइनस 7 इंटू 14, ये आ गया 196 माइनस 14 7 जा 98। ठीक है गाइस, तो 196 माइनस 98 विच 16 माइनस 8 इज 8, 18 माइनस 9 is 98. So answer is 98. Let us see what is the correct answer. Correct answer is C. C is the correct answer. Okay, चलिए, let us take one another question. Let us take one another question. This is again asked in 2025 CBSE board. It says the sum of exponents, the sum of exponents of prime factors of 4004 is what? A is given as 5, B is given as 4, C is given as 3 and D is given as 2. So let us do the prime factorization of 4004. 4004. It will go by 2, 2, 0, 0, 2. Then 2, 1, 0, 0, 1. Then it will go by, let us see, by 3, because लास्ट में इसका डिजिट 1 है तो 3 से देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, देन 11, नो इट विल नॉट गो बाई 3. लेट अस ट्राई 7, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, देन टिल लेट अस सी बाई 7, 7 1 जा 7, देन 3 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21, then let us see by, it will go by 7, it will not go, then 3 it will not go, then let us see 13, it will go by 13, 13 1 ja 13 and 13 1 ja 13, then 11, 11 1 ja 11. So 4004 प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. ठीक है, आई कैन राइट इट लाइक दिस, 2 रेस पावर 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. तो बच्चों आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम फैक्टर इसके क्या हो गए, ये प्राइम फैक्टर हो गए, इसका सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर्स. तो यहां 2 की पावर कितनी है, 2 है, यहां 7 का पावर 1 है क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो 1 है, 11 की पावर 1 है और 13 की पावर 1 है. तो इन पावर्स का सम कितना हो गया, पावर्स का सम हो गया सम ऑफ एक्सपोनेंट्स. सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5. सो करेक्ट आंसर इज ए. ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए, ये तो कुछ सवाल हमने किए बेटे, कुछ क्वेश्चंस किए हैं इसके सीबीएसई के. एक और क्वेश्चन देखते हैं. वन मोर क्वेश्चन, लेट अस सी. वन मोर क्वेश्चन इज देयर. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर बिटवीन √3 and √5. नेक्स्ट क्वेश्चन वी टेक, which is irrational number between √3 and √5.
ऑप्शंस गिवन आर ए इज 1.414238 ... Option B is given as 2.326. Then option C is given as pi. Option D is given as 1.857142. तो लेट अस सी बच्चों इसको कैसे करेंगे। रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है। रूट 3 इज 1.732। रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 2.236। आगे एंड सोन चलता है। और पाई क्या होता है, पाई इज 3.142 एंड सोन। तो बच्चों इसमें देखना है रूट 3 और रूट 5 के बीच में हमें बोला है, हमें क्या निकालना है, रूट 3 और रूट 5 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो रूट 3 क्या है मेरा, रूट 3 इज 1.732 और रूट 5 इज 2.236। तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या है। पाई तो नहीं होगा क्योंकि ये 3.14 है, 2.2 से भी बड़ा है, 1.7 से भी बड़ा है। अच्छा 1.4 भी नहीं होगा क्योंकि ये 1.732 से छोटा है। और चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी 2.326 है। रूट 5 क्या होता है 2.236 होता है। तो ये भी 2.2 से बड़ा हो गया, 2.2 है यहाँ 2.3 है, ये बड़ा हो गया। तो ऑप्शन लेफ्ट इज डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर दोबारा। अगले वीडियो में करेंगे पॉलिनोमियल्स और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे और थ्योरी भी करेंगे। टिल देन गुड बाय बच्चों, अपना ध्यान रखें। ओके।